Good morning, 10th class students. How are you all? Hope you all fine at your home. So I'm your computer teacher from California Public School. So welcome to the video series of your chapter number 3, arrays. In the last video we have discussed one searching, that is linear search, and in this video we will discuss another searching, that is binary search. So let's start. Array elements must be sorted either in ascending order or in descending order. If you want to apply this search to find some particular element from the array, your array must be either sorted in ascending or descending order. Array क्या होना चाहिए? Sorted होना चाहिए. That means just look at this array. We have 7 elements in this array and the name of the array is num. If you look at this carefully, 17, 31, 49, 55, 64, 78 and 87, they are in ascending order. Just look at this, 17, then after 31 is the biggest one, then 49, then 55. So this array is sorted in nature, so we can apply binary search on it. So let's understand this example. Suppose this is your array. Suppose you want to search for a number 31. So आपको एक नंबर है, आपको वो सर्च करना है कि 31 array में present है या नहीं. So there are number of steps that you have to follow. Step number 1, initialize beginning and end of the array with first and last respectively. If you look at this is the first element 0 and this is the last element, that is your 6. You have to just deal with the index number. वैल्यू नहीं देखनी है आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर पर फोकस करना है. राइट नाउ फर्स्ट हैज अ वैल्यू 0 and last variable has a value 6. Mid आपको नहीं पता, ये आप खुद निकालोगे. So after this we have to find the mid value. Mid value ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से this is the mid value, this is the mid value और this is the mid value. So in this we have a 7 elements, तो it's easy 3 और 3 और ये जो बीच वाला element है that is your mid. But if we have 9 elements और 8 एलिमेंट्स और 10 एलिमेंट्स तो 5-5 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, तो आप मिड किसको लेते? तो इट इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर टू पुट फॉर्मूला दैट इज़ योर फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2. 0 इज़ योर फर्स्ट, 6 लास्ट एलिमेंट, इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 3. दैट मीन्स यू हैव टू टेक द मिड इज इंडेक्स नंबर 3. Index number 3 is your mid value. Okay, after this जब mid मिल गया, so that means your array is divided into 2 halves. This is your first half, this is your second half and this is your mid value. Clear? After this, so सबसे पहले क्या करना है? So your actual comparison starts from this point. आपके पास एक नंबर दिया था जो आपको सर्च करना था, दैट इज योर नंबर 31. दैट इज योर नंबर 31. सो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले मिड पे चेक करो कि अगर आपको वैल्यू मिड पे ही मिल जाती है 31, देन योर सर्चिंग विल स्टॉप हियर और वापस आ जाओ. सो सबसे पहले मिड से कंपेयर करते हैं, बिकॉज इन दिस पॉइंट वी हैव फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड मिड. अब सबसे पहले मिड पे जब किया तो नम मिड, नम इज योर एरे नेम, मिड पे क्या है? इंडेक्स नंबर 3. दैट मीन्स नम 3 पर क्या वैल्यू पड़ा है आपके पास? यू गॉट दिस वैल्यू दैट इज 55. क्लियर? नाउ अब हमें यहाँ पे 55 मिला एंड अवर सर्चिंग एलिमेंट इज 31. दैट मीन्स इट doesn't match. 55 is equal to 31, which is not true. That means जो आपका फर्स्ट आइडिया था वो फ्लॉप हो गया.
नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड वन. अब आप एक एक करके चेक करोगे. अब मिड के बाद योर ऑप्शन इज यू कैन ईदर गो देयर और go there to search your element, that is your 31. So after this, now you will compare the number with the search element. 55 your mid, 31 your searched. Since 55 is greater than 31, so search will further take place in the first half of the array. अब ध्यान से देखिए, 51 31 से 55 31 से बड़ा है. दैट मीन्स अब आपको समझ में आ गया है कि आपका सेकेंड हाफ से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इन द सेकेंड हाफ वी हैव अ बिगर नंबर देन 55. 55 से सबके ऊपर के नंबर होंगे सेकेंड हाफ में. अब हमें कहाँ जाना है? दैट इज़ योर फर्स्ट हाफ. दैट मीन्स अब आपको सेकेंड हाफ से कोई काम नहीं है. यू हैव टू डील ओनली विद द फर्स्ट हाफ. क्लियर? नाउ सो इन योर फर्स्ट हाफ आपके पास फर्स्ट है. अब आपको क्या निकालना है? द लास्ट एलिमेंट एंड द मिडल एलिमेंट. सो लास्ट एलिमेंट आप कैसे निकालोगे? देर इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर दिस. निकालने के लिए आप क्या करोगे? मिड माइनस वन. मिड क्या था आपका? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स योर लास्ट एलिमेंट, लास्ट में क्या होगा? सेकेंड इंडेक्स. क्लियर? Talk about only this half, so second index is your last. अब last है तो middle निकालो. 0 plus 2 divided by 2, that means 2 divided by 2, that is 1. That means 1 is your middle. Clear? So after this our first step is कि आपको जो element है उसको सबसे पहले mid से compare करोगे. जब मिड से कंपेयर किया, इस 31 इज इक्वल टू 31. दैट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू एंड योर हेंस योर सर्चिंग इज सक्सेसफुल. क्लियर? सो दिस इज द केस. अब आपके पास एक सेकेंड केस आता है कि इफ यहाँ पर 31 की बजाय कुछ बड़ा नंबर रहता, सपोज 87 रहता है यहाँ पे, इज 55 इज ग्रेटर देन 87, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाती? फॉल्स. दैट मीन तब आप फर्स्ट हाफ में मूव नहीं करते, तब आप करते सेकेंड हाफ में मूव. सो इस केस में आपने क्या किया था? फर्स्ट हाफ में गए थे. क्यों? दिस कंडीशन इज ट्रू. अगर ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाती, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 87 होता, आपको 31 की जगह पे 87 सर्च करना होता, तो इन दैट केस यू विल नॉट गो टू दिस पॉइंट. यहाँ नहीं जाते आप कहाँ पे आते? इस पॉइंट पे नहीं जाते आप लोग. आप कहाँ पे आते? दैट इज़ योर स्टेप नंबर 3. दैट मीन्स उसमें आपने क्या किया था? यू हैव सर्च्ड लास्ट. हेयर यू विल सर्च फर्स्ट. लेट मी शो यू. अब आपको पता है कि अब मुझे सेकेंड हाफ में जाना है. सेकेंड हाफ में तो ऑलरेडी आपके पास लास्ट है. अब क्या ढूंढना है? फर्स्ट. फर्स्ट कैसे ढूंढोगे? मिड प्लस 1, दैट इज 3 प्लस 1 इज 4. और ये कैसे निकालोगे? दैट इज योर मिड पॉइंट. 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10. 10 divided by 2, that is your 5th. So this is, in that case, if we are in the second half, this is your first, this is your last, and after that दोनों को प्लस किया. 10, 4 plus 6 equals to 10. 10 divided by 2 is 5, so that is your mid. Clear? One more case is also there. In case the element is not found, then repeat the process from 3. अगर एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना होगा? थर्ड प्रोसेस से फिर से शुरू करना होगा. क्लियर? फाइनली द प्रोसेस विल बी कंप्लीटिंग रिजल्टिंग इन सर्च इज अनसक्सेसफुल. और अगर नहीं मिलता, थर्ड प्रोसेस के बाद आप पूरा एरे ट्रैवर्स करके आते हो, बट फाइनली यू डिडंट फाइंड एनी particular item which user actually wants to search,
In the last, you have to display this message. Finally, the process will be completed, resulting in search is unsuccessful. Clear? So let's move to the example program. So here is your binary search program. अगर आपने अच्छे से समझा है एग्जाम्पल, so in the program you will not face any problem. Clear? So let's discuss this. So let's start from here. I equals to, so integer I is your index value, k is tell if any element is present or not, p is your midpoint. So you can also take p equals to 0, p is your midpoint, ns is number, n as number to be searched. Lower bound is your first, upper bound is your last. So let me please remember, this is your first is your lower bound, last is your upper bound. Let me write it also. So first is your lower bound and last is your upper bound. Clear? Your LB, that is first is 0 and upper bound is 9, because this program has 10 elements in an array. So that is why lower bound 0 and upper bound equals to 9. So let's do it. So this for loop क्या करेगा? ये for loop, it will store all the elements in an array. After this you have to take the number from the user. वो नंबर लोगे जो यूज़र क्या करना चाहता है, सर्च. इन द एग्जाम्पल यूज़र हैज़ गिवन यू 31, तो ns में क्या होगा, नंबर टू बी सर्च. आफ्टर दिस देर इज अ वाइल लूप. कब तक चलेगी? फ्रॉम 0 to 9. सो दिस वाइल लूप ट्रावर्स ऑल द एलिमेंट्स. ट्रावर्सिंग होगी फ्रॉम 0 to 9. कब तक चलेगा? जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से लो रहेगी. देन यू हैव टू फाइंड द मिड. नेक्स्ट स्टेप क्या है? p इज योर मिड. p इज योर मिड. मिड कैसे निकालते हैं? 0 + 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4.5. यू कैन इधर टेक द एलिमेंट 4, जो इंडेक्स 4 है उसको भी ले सकते हो आप, 5 को भी ले सकते हो. सो नाउ, सो देर आर 3 केसेस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. एक केस तो वही था जिसमें आप मिड पे ही चेक कर सकते हो. क्लियर? एक केस वो था जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, फर्स्ट हाफ वाला. दैट इज योर that element which is present on the mid is greater than the number to be searched. यहाँ पे था 55, यहाँ पे था 31. उस केस में हमने क्या किया था? इफ़ यू रिमेम्बर क्या किया था? सो हमने किया था mid -1. लेट मी शो यू. ये किया था लास्ट mid -1, दैट इज p -1. लास्ट क्या था आपका? अपर बाउंड p -1. तो यही पर तो है वो अपर बाउंड p -1. सो इसके बाद हमने एक और केस डिस्कस किया था जिसमें आपको सेकेंड हाफ में जाना था. सेकेंड हाफ में क्या किया था? लोअर बाउंड p +1. लोअर बाउंड इज योर फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1. दैट इज योर फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1. क्लियर? सो आफ्टर दिस, इफ any of the case matches, k is now 1 instead of 0. k की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? k की वैल्यू थी 0. जैसे ही उसको कुछ एलिमेंट मिला, मे बी दैट एलिमेंट मे बी प्रेजेंट इन द मिडल, इन द फर्स्ट हाफ और इन द सेकेंड हाफ, उसने k की वैल्यू को इंक्रीमेंट क्या कर दिया? 1 एंड ब्रेक. इफ k is equals to 1, अगर k की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स द सर्च सक्सेसफुल एंड द नंबर इज प्रेजेंट. और अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 ना होकर 0 ही रह जाती, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं मिला. उस केस में द सर्च इज अनसक्सेसफुल एंड द नंबर इज नॉट present. So class, this is all about today's period. I hope
आपको ये सर्च समझ में आया होगा. सो टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे.